بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ افغان آفیشیل ہیں جی، ہمارے ساتھ رحمت اللہ ترکمن جناب۔ پہلی دفعہ ہماری کسی آفیشیل سے میٹنگ ہو رہی ہے اور راجہ مشتاق ترک صاحب کے گھر ہماری ترک ہاؤس میں ادھر ٹیکسلا میں ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ راجہ عمران صاحب بھی ہیں، بیہائنڈ دا کیمرہ جناب راجہ خلجی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مختصراً ہم رحمت اللہ ترکمن سے تھوڑا سا افغانستان کے حالات و واقعات کے حوالے سے، وہاں پہ تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ان سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں۔ انہوں نے ماشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ارطغرل غازی پر کتاب دکھائیے گا۔ یہ ارطغرل غازی یہ اس کتاب کے ماشاءاللہ رائٹر بھی ہیں اور لاسٹ ایئر جولائی میں انہوں نے یہ پبلش کیا ہے، اور اس کا ذکر حسن نثار جو معروف کالمسٹ ہیں، اینکر بھی ہیں جیو کے، انہوں نے بھی اپنے کالم میں رحمت اللہ ترکمن کی ارطغرل غازی جو کتاب انہوں نے یہ لکھی ہے اس کا بھی حوالہ دیا ہے۔ کافی انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا ماشاءاللہ جی۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ راجہ صاحب کے گھر آئے تو آپ تشریف لائے اور یہ کتاب ان کو پیش کی ہے جی، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو اچھا مختصراً آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے؟ جی میری پیدائش جو ہے 1997 میں ہری پور ہزارہ۔ اچھا ماشاءاللہ، بالکل یہ تو ینگ ہے۔ 97 میں تو ہم لوگ حج کر کے بھی واپس آ گئے تھے اس وقت۔ اچھا یہاں پہ ہری پور کی پیدائش ہے، ہری پور کی پیدائش، ٹھیک ہے۔ تو ابتدائی تعلیم بھی ہری پور سے ہی حاصل کی ہے، گورنمنٹ کامرس کالج سے BBA کی ہے ہری پور سے۔ اس کے بعد ابھی اعلیٰ تعلیم جو ہے کابل میں پولیٹیکل سائنس میں، کابل یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس کر رہے ہیں آپ لوگ جی، ٹھیک ہو گیا۔ تو ساتھ میں آپ ملازمت بھی کر رہے ہیں؟ جی پارلیمنٹ میں جو ہے سرکاری نوکری ہے۔ اچھا پارلیمنٹ اس میں وہاں پہ سرکاری جو ہے نا آپ ملازم ہیں ماشاءاللہ۔ تو ابھی حالات ماشاءاللہ کیسے افغانستان کے جا رہے ہیں؟ تو افغانستان کے جو ہے حالات 2-3 سال سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پیس ٹاکس قطر میں جاری ہیں۔ پہلے امریکہ کے ساتھ جو ہے طالبان کا معاہدہ ہوا اور اس سال سپٹمبر میں جو بائیڈن نے بھی اعلان کیا کہ وہ جا رہے ہیں افغانستان سے۔ تو اس کے بعد بین الافغانی مذاکرات کا دور شروع ہوا تقریباً 1 سال سے۔ تو پیش رفت ہیں آپس میں، کچھ اکثر معاملات پر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہیں۔ تو ابھی اگلا جو ہے اگلی میٹنگ ترکی میں استنبول میں ہونے والی ہے، دونوں سائڈز آپس میں باتیں کریں گی۔ تو آنے والے حالات کا جو ہے انحصار وہ ترکی کی پیس ٹاکس پر منحصر ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، ایک تو لیکن آج بھی پاکستان کے اخبارات میں آیا کہ قندھار غالباً یہ کس علاقے میں طالبان نے اٹیک کیا ہے، جی تو وہاں پہ وہ کچھ وہ بھی چل رہے ہیں۔ تو حالات آج کل جو ہے خراب ہیں۔ ویسے ابھی کے 3 دنوں میں جو ہے سیز فائر کا اعلان ہوا تھا دونوں طرف سے، لیکن اس میں بھی جو ہے 4 حملے ہوئے، بڑے حملے، ایک مسجد میں منبر پر حملہ، کافی شہید بچے بھی ہو گئے۔ ہمارے چیف صاحب بھی گئے ہیں وہاں پہ، عبداللہ سے بھی ملے ہیں۔ بالکل۔ اس کے علاوہ بھی حملے بہت ہوئے آپس میں، جو ہے افغان فورسز اور جو ہے مخالفین کے درمیان ہیں، آپس میں جو ہے اکثر لڑائیاں جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس میں پھر جو ہے عوام لوگ متاثر ہوتے ہیں اکثر۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو کابل اور اس کے کوئی بھی حصہ محفوظ ہم نہیں کہہ سکتے آج کل جو ہے، کیونکہ ایک مذاکرات ہیں اور جنگ بھی دونوں ایک ساتھ جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہاں پہ امن، پیس، اسٹیبلٹی اللہ تعالیٰ وہاں پہ لے کے آئیں۔ چلے جی، ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسری کہ وہاں پہ ابھی مئی کا مہینہ ہے، 18 تاریخ 17 مئی ہے، تو یہاں پہ تو دھوپ کی تمازت کافی زیادہ ہے، گرمی ہو گئی ہے۔ تو وہاں پہ کابل کا موسم آپ 15-20 دن پہلے ہی حال بنائے، 10 دن پہلے، تو کیسا کابل کا موسم؟ وہ ایک پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ٹھنڈا ہے۔ اچھا، ابھی پنکھے نہیں چلتے وہاں پر، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے درجہ حرارت بھی 18-19 میں تقریباً ہے جی وہاں پر۔ تو رمضان بھی ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا ہے، یعنی گرمی دھوپ میں بھی آدمی سفر کرے تو آدمی کو گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ بہت اچھا موسم۔ اور یہ سننے والے کو، دیکھنے والوں کو یہ کائنڈلی بتائیے گا، کیونکہ آپ کا گھر بھی مغرب کی طرف ہے، مزار شریف کے آگے کہیں آس پاس ہے، تو وہاں پہ ترکمانستان یا ازبکستان، وہاں پہ پاکستانی اگر ویزا ان کے پاس ہو اور افغانستان کا ویزا بھی ہو، تو وہاں پہ بائی روڈ وہاں پہ وہ
सफ़र कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ पे? अफगानिस्तान से जो है चंद सेंट्रल एशियन कंट्रीज की जो सरहदें मिलती हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। अच्छा। तो ताजिकिस्तान का जो है पहाड़ी इलाका होने की वजह से बॉर्डर उतने ओपन नहीं है। ठीक है। लेकिन तुर्कमेनिस्तान के साथ जो है बहुत आमदोरफ्त ज्यादा है, और जो लोग फॉरेनर्स अक्सर आते जाते रहते हैं बाय अफगानिस्तान। तो पाकिस्तानियों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक आकेना बॉर्डर कहते हैं तुर्कमेनिस्तान का जो बॉर्डर है, और उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर हैरतान बॉर्डर के नाम से मशहूर है। अच्छा। तो इजीली ट्रांजिट हो सकते हैं वहाँ पे पाकिस्तानी, बहुत आसानी, यानी बहुत कम खर्चे में वहाँ पर पाकिस्तानी उन ममालिक का सफर भी कर सकते हैं। मैं एक और सवाल चूंकि इससे रिलेटेड है, मैं जरा, अगर यहाँ से अब ताजिकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान का आप बता रहे थे, मैक्सिमम कितने पैसे खर्च होते हैं कि बॉर्डर तक बंदा पहुंच जाता है? अगर टेक्सला से बंदा इस्लामाबाद पिंडी से सफर करे तो मैक्सिमम कितने किराया खर्च लगता होगा कि वहाँ पर बंदा पहुंच जाता है? अच्छी बात है, अच्छा सवाल है। वैसे वीजा के जो उससे अलग करके वो तो अलग है, पहले से यहाँ से पता चल जाते हैं। अच्छा, पाकिस्तानियों को ये बताएं कि वीजा जी कितने आप बता रहे थे कि वो 1 महीने का फ्री वीजा? जहाँ तक मैंने सुना है, कंफर्म बहुत अर्से पहले सुना था कि 1 महीने का वीजा फ्री है अफगानिस्तान से पाकिस्तानियों को 1 महीने तक फ्री है। और जो पहला सवाल था कि जो खर्चे वाया रोड अगर चले जाएं, तो अंदाजा लगा कि मैं अगर बता दूं, यहाँ से मिसाल समझें पेशावर तक कितना किराया हो गया, उससे आगे तुर्कम तक, ठीक है, ठीक, वहां से आगे का अगर बता दें, तुर्कम से काबुल तक बाय रोड जो है बेहतरीन गाड़ी में 500 से 600 रुपए, और वहां से मजार शरीफ जहाँ उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर है, मजार शरीफ तक भी जो है 1500 रुपए, काबुल से मजार शरीफ तक 1500 रुपया। अच्छा, ये 2000 रुपए ये लगभग वहाँ से होगा। तो वो बॉर्डर तक भी बस 500 यानी 2500 रुपया तुर्कम बॉर्डर से, और मैक्सिमम यहाँ से कोई 1000 रुपए लग जाए, 1000 यानी 3500 रुपए पे आप तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर तक आप पहुँच सकते हैं, बहुत आसान। तो अच्छा, माशाल्लाह जी, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, आप माशाल्लाह से, चूंकि मैंने आपकी बुक भी देख रहा था, बैक वक्त आप ये है कि एक तो तुर्कमेनिस्तान के हवाले से भी आपकी नेशनलिटी का, जो कि अबाव अजदाद वहाँ की, आपके पैदाइश आपकी जनाब इधर की हुई है पाकिस्तान में, और आपके वालिदैन ने हिजरत करके आए हैं अफगानिस्तान से। तो पाकिस्तान को आप कैसा पाते हैं? यहाँ के अवाम को, लोगों को क्या फीलिंग है आपकी? पाकिस्तान जो है, क्योंकि मेरी पैदाइश ही यहाँ की हुई है, तो पाकिस्तान तो अपना ही मुल्क है, यानी बेगाने फील नहीं करते कि यहाँ के लोग वहाँ के लोग, यानी दोनों तरफ एक ही लोग हैं। मौलाना जफर अली खान का एक शेर था कि थोड़ा बहुत याद आता है कि अखुवत उसको कहते हैं कि चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। तो अखुवत और बरादरी की हवा जो है बरकरार रहनी चाहिए। दोनों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और हजारों साल से जो राबते हमारे जारी हैं, ऐसा नहीं है कि नए आपस में वजूद में आएगी। पाकिस्तान नाम अगर 70 साल से, या अफगानिस्तान भी 70-80 साल से हो, बड़े सगीर और खुरासान या उससे कबली भी जो है महमूद गजनवी वहाँ से आए, कितने बुजुर्ग वहाँ से आए थे। इस्लाम की तबलीगात जो है सेंट्रल एशिया से आने वाले बुजुर्गों ने यहाँ पर फैलाई। तो हम कह सकते हैं कि दोनों मुल्क आपस में हर लिहाज से बहुत नजदीक हैं। अच्छा, और आगे भी होने चाहिए। जबरदस्त। एक और चीज़ है, आपसे ये भी सवाल बड़ा अहम है मौजूदा हालात के हवाले से। जैसा कि हम इंडिया में खबरें सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि वहाँ पर अभी लॉकडाउन जो चल रहा है जी, 1 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। वहाँ पे भी चूँकि कोरोना के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, कोविड के हवाले से देखा गया है, काफ़ी ज़्यादा अमवात हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मरीज सामने आ रहे हैं। तो हमने पाकिस्तानियों ने काबुल अफगानिस्तान के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं सुनी, देखी, कोई खबर नहीं हमने स्टडी इस हवाले से, क्योंकि आप रिसेंटली वहाँ पे विद इन 2 वीक्स आप वहाँ से आए हैं। तो वहाँ के हालात और वाक़यात कोविड के हवाले से बताइएगा कि क्या चक्कर है? अफगानिस्तान के हालात अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, और रोज़ाना जो है 200 से 150-250 के दरमियान में रिपोर्ट हो रहे हैं, केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अच्छा, रिपोर्ट और न्यू डेथ्स भी जो है 3, 4 या 5 में है, यानी उतनी ज्यादा नहीं है। अच्छा, और लॉकडाउन नहीं, और पाबंदी भी उतनी नहीं है। अच्छा, लॉकडाउन वगैरह नहीं है, लॉकडाउन कुछ भी नहीं है। लोग भी यानी उतने एहतियात मैंने नहीं देखी कि मास्क हर मास्क वगैरह बाकी हो, जबरी कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और नए केसेस भी इतने ज्यादा नहीं हो रहे। अच्छा, नए केसेस मौजूद, क्योंकि आपकी बरादरी भी है यहाँ पे, राजा मुश्ताक तुर्क साहब हैं,
तो यहाँ पे आप उनके घर मेहमान आ जाएं तुर्क हाउस में भी, तो कैसा फील करते हैं अपने दोस्तों को, अपनी बरादरी के लोगों को मिल के आप? मुश्ताक साहब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सालों से राब्ते हैं। अच्छा, हमारी अपनी फैमिली, अपनी बरादरी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग तुर्क बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक सरहद की उस तरफ भी आबाद हैं, इस तरफ भी, ठीक तो कोई अजनबियत महसूस नहीं होती। तो जब भी यहाँ आना होता है, इनके घर आते हैं, या अगर नहीं भी आ सके तो एक फ़ोन करते हैं, आपस में समीमियत और जो है क़ुव्वत बरकरार है। उनकी भी जो ज़रा नवाजी है कि हमें उन्होंने गेस्ट किया यहाँ पर, इज़्ज़त बख्शी, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह राज साहब ये जरा बताइएगा कि ये क्या चीज़ है जी? ये देखें, ये कुछ थोड़ा सा बताएं, किस दौर की है जी तलवार? ये तकरीबन आज से तकरीबन 150 साल, पौने 200 साल पुरानी है। पौने 200 साल, यानी 1850 के लगभग की है। ये 1893 में हम यहाँ टेक्सास शिफ्ट होते हैं, हमारे ये उससे पहले की है। अच्छा, तो ये किन के पास ही, आपके बुजुर्गों के पास? हमें इस तरह हुआ कि हमारा जो गाँव है ना बर्डे, वहाँ पे ये हमारे एक बुजुर्ग थे जिनकी उम्र, औरत थी जिनकी उम्र तकरीबन 115 साल के करीब थी। माशाल्लाह। तो ये उनके पास थी। अच्छा। तो मैं एक दिन गया तो उन्होंने मुझे ये हैंड ओवर किया, आपको दे दिया, ठीक हो गई। तो ये इस तरह है कि यहाँ पे सब नाम लेते हैं। अभी तो मेरे ब्रादरी में चंद लोग हैं जिन्हें वो शजा नहीं पता। अच्छा। तो मेरे दादाजी का नाम नियामत खान था, ठीक है, नियामत खान। तो उनके वालिद का नाम था मोहम्मद खान। तो ठीक, उनके वालिद का नाम था खैर मोहम्मद खान। तो उनके वालिद का नाम फजल खान तो था। खैर मोहम्मद खान और सादा खान दो भाई थे। अच्छा। ये जो फजल अहमद खान साहब थे, इनके जो दादा थे, अच्छा, ये उनकी तलवार है। अच्छा। और लंबी पीढ़ी से माशाल्लाह ये आ रही है। और आपके बता रहे रहमतुल्लाह तुर्कमन साहब भी बता रहे थे कि वहाँ पे अफगान नेशनल असम्बली में कितने मेम्बरान असम्बली तुर्क कम्युनिटी से जो है तकरीबन 30-35 के दरमियान में है, तुर्क हैं। और सेनेटर्स भी 10-12 सेनेटर्स हैं, 3 मिनिस्टर्स हैं वहाँ पर। अच्छा, एक तो ये माशाल्लाह चले तुर्क हैं, लेकिन अफगान नेशनल है, वहाँ पे मुलाजिम है, पाकिस्तान नेशनल भी हैं। तो आपने आज इन्हें दावत दी, आप कैसा फील करते हैं अपने? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं जी। ये मेरे भाई हैं छोटे, तकरीबन 10 साल के करीब, 12 साल के करीब हमारा आपस में ताल्लुक है। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये हमारी जो तुर्क वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान की मीटिंग्स होती थी, ठीक है, एबटाबाद में हो, इस्लामाबाद में हो, तुर्गार में हो, ताकोट में हो, अच्छा, मांडरी में हो, बालाकोट में, जहाँ भी होती थी, ये मोहरकला में हो, ये वहाँ पहुँचे थे। ठीक है, बड़ी बात है जी, माशाल्लाह। तो वहाँ से हमारा आपस में तलकात हुए। हमें एक लास्ट टाइम ये अभी जब आप अफगानिस्तान से कितना पीरियड वहाँ पे आपने स्टे? जी, अफगानिस्तान से जो है क्योंकि कोविड आ गया था, दरम्यान में कुछ महदूदियतें आई थी, तकरीबन 1.5 साल के बाद अभी आप पाकिस्तान अभी आ रहे हैं। ठीक हो गए, चलिए हमारा इंशाल्लाह आना जाना होगा। जब तुर्कमेनिस्तान उज़्बेकिस्तान हम लोग विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह वाया काबुल आपसे होते हुए इंशाल्लाह आगे जाएंगे। वहाँ पे जलालाबाद हमारे जाने परवाज भी है और दीगर माशाल्लाह वहाँ पे हैं, तो उनसे होते हुए राजा साहब आप बात करना चाहते हैं तो राजा खिलजी साहब आप कोई? बस मैंने तो पहले थोड़ी सी सरसरी सी गुफ्तगू की थी, कुछ यानी नेशनल लेवल पे भी बातें हुई हैं और कुछ इधर इलाकाई बातें भी हुई हैं माशाल्लाह। ओवरऑल यानी इनकी किताब के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है रहमतुल्लाह साहब से। तो इनकी किताब पर भी मैंने तबसरा किया, टाइटल माशाल्लाह बहुत प्यारा। और फिर हमारे पाकिस्तान के सीनियर कॉलमिस्ट हैं आसनी साहब, उन्होंने जी तो बड़ी खुशी हुई जी। हमारी नेक तमन्नाएं और इनके साथ हैं। और ये कहते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक वीडियो को लाइक, बहुत शुक्रिया। और बेल बटन दबाएं, बेल बटन भी बहुत शुक्रिया जी।